नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। कमला दत्त समग्र कहानियां, इस नाम का संग्रह मेरे सामने है जिसमें 33 कहानियां हैं। किताब का संपादन छबील कुमार मेहरे और अभिषेक ऋषि ने किया है। इस किताब को छापा है दिल्ली के प्रज्ञा प्रकाशन ने और 426 पृष्ठों की इस किताब की कीमत रुपयों में 900 और डॉलरों में 15 है। आज यानी 12 अप्रैल 2025 की शाम कस्तूरी नाम की संस्था ने दिल्ली के साहित्य अकादमी में पुस्तक की लेखिका के सम्मान में एक आयोजन किया जिसमें लगभग 50 लोग मौजूद थे। कमला दत्त अविभाजित भारत के लाहौर में जन्मी और चंडीगढ़ से पढ़ाई करते हुए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए अमेरिका इस तरह गईं कि बाद में वहीं बस गईं। लेखन के अलावा नाटकों और कविताओं में समान रूप से सक्रिय कमला दत्त इन दिनों भारत आई हुई हैं। अब जो आप सुनेंगे उसमें सबसे पहले खुद कमला जी की आवाज़ में उनकी लेखकीय यात्रा के स्केची ब्यौरे हैं और फिर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही लेखिका प्रत्यक्षा का सारगर्भित वक्तव्य है जो कमला दत्त के रचना कर्म के केंद्रीय तत्वों पर प्रकाश डालता है। अंत में आयोजकीय वक्तव्य है जिसमें हनुमान जी के प्राकट्य दिवस और कार्यक्रम की शुभ सफलता का संयोग बताया गया है। तो बहनों भाइयों, सबसे पहले साइंटिस्ट, प्रोफेसर और राइटर कमला दत्त। My gratefulness to my family members and everyone who has shown up today, including some of my friends that go way, way back. There are some individuals in this august audience that I like to recognize. Behal Sahib, Anil Joshi, Hari Narayan ji pata nahi aaye hain ya nahi aaye hain. But above all, I'd like to acknowledge Dr. Shabil Meher ji, who has compiled the book, the collection. This evening would not have been possible without your generosity. And also I'd like to acknowledge a dear friend from Boston, Bindu, who is heroine of my novel, Boston Wo Din, and is on the cover. Okay. My biggest fan in the audience is my younger sister, Nirupma Dutt, well-known journalist, poet, translator, who has come all the way from Chandigarh to be here today. And no one has done more for my writing than Niru has done. She has kept me alive in her writings in one way or the other. And also, over the years, she has provided me platforms, small and big, so that I could share my work. And also, coming back to how I started writing, I have written very little, but coming back to how it started, basically I come from a family of avid readers, okay? Both are, my dad and uncles had postgraduate degree in English, and they read quite a bit of English. And some women in our family, mothers and aunts, knew English but read mostly Bankim, Sharath, and all the other writers in translation. So we were all reading all the time. But two other individuals that were actually inspiring for me was, some of you know them, Dr. Virendra Mandiratta was an iconic professor in Chandigarh. He single-handedly was responsible for setting the groundwork for both theatre and literature in Chandigarh. And I had done some plays with him. Since he was a Hindi professor, I started writing in Hindi. If he was an English professor, I might have written in English, and my family would have been much happier. Okay. So another person who was very kind to me during those days was a friend of our dad, Bhagwant Singh, a poet. And he was kind of like my guide and would take me all of the Punjabi readings. I couldn't speak Punjabi. We had spent our childhood in Bangalore, and I had studied Hindi only for 3 years. So most of my formal Hindi education is 3 years of high school and optional in college. But since he was a Hindi professor, I started writing in Hindi. After going to America between 1970 and 80, I wrote around 15 stories. Most of those stories grew very organically in and around my environment.
And as you mentioned it, those stories had dislocation, displacement, and quite a bit of nostalgia. That was integral part of those stories. Leaving home was a traumatic experience for me. I didn't realize that how much I'll miss my family and the country itself. And yet I was a person, I always wanted to go abroad and have really enjoyed being there. That's also the part of the story. I had arrived in Midwestern town, Lincoln, Nebraska, 80 to 90% Republican city, and it was the tail end of the Vietnam War. There were 30 to 40 students on the campus, and somebody told me that Sunita Jain is here. And she was finishing her PhD in English, and her husband was on faculty in Department of Physics. So I called her, and she was so surprised that somebody has come from India who had read 2 of her books. So it was a shock to her, and we had a wonderful time. And then Sunita used to edit a student newspaper at that time. It was a tail end of Vietnam War, and all of us in India were socialist communists those days, and also anti-war. And just on impulse, I wrote a poem in English about the Vietnam War, which was used by various teach-ins, the most protests against the Vietnam War. And Sunita was quite surprised. She said, तुम लिख लेती हो? मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत. कहती हिंदी में कुछ लिखा? मैंने कहा हाँ, कॉलेज मैगजीन में 2-3 कहानियाँ छपी थी. कहती छपने भेजती हो? मैंने कहा नहीं सुनीता जी मैंने कहाँ भेजनी है. While in Chandigarh, I had written a short story and showed up at house of Ramesh Kuntal, whom I didn't know, but we knew that he's an iconic critic, and he was very kind. कहते कैसे आई हो? मैंने कहा कहानी सुनानी है. कहते कल 4 बजे आना, सुना देना. So I went next day और कहानी सुनाई. कहते अच्छा लिखती हो. In Nebraska, I had that story. छोटे से पेज पे लिखी थी. I wrote the story, rewrote it on the yellow pad, and I mailed it to Sarika. क्योंकि घर में धर्मयुग सारिका आती थी. Within 3 weeks, I got this beautiful letter from Kamleshwar ji. इतनी beautiful penmanship थी जैसे मोती पिरोए हों. कहानी अच्छी है, छाप रहे हैं और कहानी भेजिए. आप साइंस से हैं, आपकी कहानियों में साइंस होनी चाहिए. And without realizing, that line became my mantra. And whatever I wrote, consciously, subconsciously, the scientific images started coming one by one, and they became part of my story. If Kamleshwar had not published that short story then, I think that was end of my writing. And it was the generosity and openness of the editors at that time that they would read something, acknowledge it and publish it. And I have always felt that most of my writing I was able to do during those periods because of the magazines and the editors. Then I moved to Boston. It was a very vibrant city, multicultural, with all the universities. And that was the period of maximum growth for me, both personally and professionally. Renting an apartment, buying groceries, opening a bank account, but also learning about the movies of Ingmar Bergman, going to museums, listening to Noam Chomsky, and meeting Bindu was one of the highlights. But at the same time, emergency had happened in India, and that emergency and how all of us reacted in Boston and worked was also part of our lives. After that, I had moved to Boston, and there was a small 2-line letter from Bharti ji. आपकी कहानी देखी या पढ़ी है, धर्मयुग के लिए कुछ भेजिए. It was a shock कि भारती जी 2 लाइनों की खत हमें लिखेंगे. So I sent him 2 stories. तो उन्होंने बड़ा फॉर्मल लेटर आया, ये धर्मयुग के लिए उपयुक्त नहीं है. तो उन्होंने कहा ठीक है. The third story, I had met somebody, 3rd generation Indian lady whose family had settled in Kenya, and she had gone through a rough patch. कहती कमला मेरी कहानी लिखो.
मैंने कहा सचमुच? हाँ। मैंने कहा नहीं क्या? कहती नहीं नहीं तुम्हें लिखनी है, दे नीड टू नो दैट हाउ बैडली इंडियन मैन ट्रीट इंडियन वुमेन। सो वो पहली कहानी मछली सलीब पर टंगी वॉज रिटन ऑन हर रिक्वेस्ट। भारती जी को अच्छी लगी, वो पब्लिश हो गई। सो द टोटल स्टोरीज दैट केम बिटवीन 70 to 80 or so grew up organically, but they would not have been possible without the magazines Dharamyug Sarika and Kamleshwar ji, Bharti ji, and the two sub-editors of Dharamyug, Yogendra Kumar Lalla and Manmohan Saral. They were so kind because मेरी spelling mistake इतने गलत थे, ठीक करके भारती जी को देते थे. Not only those stories got published in Dharamyug Sarika और कहानी में, but other people were reading it. Somebody that I didn't know from Patna, Robin Shah Pushp, he included one of my stories as 15 best stories of the year. Mahib Singh ji had picked another story, 15 best stories. Then Yogendra Kumar Lalla and Manmohan ji were writing a book about women writers in 10 or 15 years, and they included a story. And Sudarshan Narang was compiling a book, and he included my stories along with big shots like Bhisham Sani Kamleshwar. And supposedly Rajendra Yadav chastised him for saying, "Ye kaun hai, iski kahani kyun kar li hai include." So that was another part of that story. Then my third move was to the Atlanta. That was my first academic position. And there are different categories in the, I'm not a physician, but I'm a scientist who taught in a medical school with my own research program. When you are not in a tenure track, but the main track in the academic career, you have to be teaching, writing grants to generate money for your work. That means part of your salary, technician, postdocs, and everybody else. And then you have committee duties, and I was on admission committee for 22 years. That means 1 day a week was gone. So there was a lot of work stress, but the main reason in that 28-year period, if Dharamyug and Sarika were there, and if the generous editors were there, I would have written at least 10 more stories. But भेजो तो कोई response नहीं आती थी, और magazines बंद हो गए थे. That was another part. But moving to Atlanta was such a wonderful experience in many ways, being center of the civil rights activities, meeting Mrs. King, meeting John Lewis, Andrew Young, and that part. So I became part of that group quite a bit. And the stories that were brewing at that time, and I wrote later on, were more multidimensional, multicultural. They were universal. And they also transcended the national, international barriers, religion barriers, race barriers, and gender barriers. And they were better reflection of my circle of friends that includes black, yellow, white, gay, lesbian, transgenders. That's my circle of friends. They are my people, my family, okay, in many ways. So but most of my writing has been in isolation. In Boston, I had a readership of one, Bindu. In Atlanta, there were two people, part of Aligarh Association, Zahra and Khurshid. Anytime I wrote something, तो मैंने Zahra को call करना कि मैं आ रही हूँ. They knew right away that मुझे कुछ सुनाना है. And they knew I was vegetarian. So खूब अच्छा vegetarian meal बना के, खिला के, फिर both खुर्शीद भाई and I, we loved मलाई वाली चाय. तो कहते ये बहन भाई मलाई वाली चाय पियेंगे, मैंने मलाई जमा की हुई है. So we would have that, और मैं कुछ सुना देती थी. So that was pretty much my audience. All the stories and everything that came after my retirement, my biggest readers were Suman Pandit, she's sitting here, Dr. Narendra Mohan's daughter, and Dr. Narendra Mohan. अगर मेरी बिंदु का घर बॉस्टन में सेंचुरी था, तो खुर्शीद और जहरा अटलांटा में थे. एंड पोस्ट रिटायरमेंट इट वाज देयर हाउस. जाके उनके कमरे में जो कुछ मन आता था सुना देती थी, और वो लोग प्यार से सुन लेते थे. एंड आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू. बट आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू फ्यू अदर पीपल, बहल साहब,
प्रेम भारद्वाज पाखी के, अर्चना जी से मैं कभी मिली नहीं थी, और वागर्त के सुशील कांत। आई सेंड सम स्टोरीज, बट आई हैव टू टेल के पहले इसलिए ने लिखा कि यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, मैगजीन्स बंद हो गई थी। आने के बाद नीरू टुक मी टू कपल ऑफ पीपल। द सेकेंड बुक, द कलेक्टेड कमला दत्त की यादगार कहानियाँ, और जिन जो मैगजीन के पब्लिशर्स हैं, they were outright condescending and rude, and I want to acknowledge that also. अगर किसी को जानते नहीं तो you are treated like garbage pretty much here. अमेरिका में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, सब है। मैंने बहुत छोटे स्कूल में पढ़ाया है, although 2 of our students were surgeon journalists later on. I can go to any university, go to and leave, I say that I want to meet a president or a vice chancellor. I'll talk to the secretary, they'll give me an appointment, they'll meet with me. They might not agree, और जिस काम के लिए गए वो भी नहीं करेंगे, but they'll be polite and courteous and decent. पर यहाँ मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान में छोड़ के गई थी वो बदल चुका है हमारे लिए. Okay, so basically that's little bit of my story. All of us have one story to tell, and we are telling it many different ways. I'm still work in progress, trying to improve, and I'm grateful to each and every one of you for showing me for somebody that you hardly know, and my family. Okay, so thanks. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमला दत्त जी, सुंदर यात्रा को और संघर्षशील यात्रा को हमसे साझा करने के लिए. मैं ऐसे आपके लिए कामना करूंगा कस्तूरी परिवार की ओर से कि आपका जो रचना संसार है वो और बढ़े और सुंदर कहानियाँ आपकी कलम से निकलें. एक बार फिर से आपका पुनः आभार. और हम सभी अध्यक्ष वक्तव्य को सुनने के लिए उत्सुक हैं, और हम सबकी प्रिय कथाकार प्रत्यक्षा से मैं निवेदन करूंगा आप इन कहानियों पर अपनी बात रखें. प्रत्यक्षा. शुक्रिया विशाल. सबसे पहले जैसे वंदना जी ने बोला ना, मैं भी सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि कमला दत्त जी की कहानियों से हम रूबरू हुए. और ये जैसे इन्होंने कहा था, मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई कि इतने सालों से कैसे ये कहानियों से हम दूर रहे. और जब उस दिन तुमने ये किताब मुझे दी थी तो मैं सोच रही थी कि मैं खोलूँगी और कोई ना कोई कहानी मुझे धर्मयुग और सारिका वाले दिनों की कोई मुझे मिलेगी. अभी पूरी नहीं पढ़ी हूँ तो शायद कोई ऐसे एक मेमोरी में आ जाए. तो मैंने ये किताबें ली, ये किताब और 30 कहानियाँ थी इसमें. अच्छा सॉरी, मैं कुछ फॉर्मेलिटी नहीं कर रही, मैं ऐसे बातचीत जैसे अध्यक्षीय भाषण की तरह कोई फॉर्मल चीज़ नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी खुशी जाहिर करना चाहती हूँ कि जब ये किताब मैंने उठाई और मैंने तब उतना ध्यान नहीं दिया था, एक कहानी मैंने पढ़ी और मुझे ये समझ में आ गया कि ये कहानियों का कैनवस कितना बड़ा है. और तुरंत मैंने कमला जी को व्हाट्सएप किया. मुझे आज पता चला कि ये व्हाट्सएप नहीं करती है, नहीं देखती है. तो मैं सिर्फ इनसे एक कहानी पढ़कर ये बांटना चाह रही थी कि मुझे इन कहानियों में जो दुनिया मुझे दिख रही थी वो कितनी मेरे करीब की दुनिया है. ऑल्दो वो अमेरिका में रहती है, मैं यहाँ रहती हूँ, हमारी दुनिया काफ़ी फिजिकल सेंस में बहुत अलग तरह की दुनिया है. लेकिन मुझे लगा कि मन की जो दुनिया होती है और जो इमोशनल एक स्पेस हम इनहैबिट करते हैं, वो इमोशनल स्पेस या चीज़ों को देखने का जो इनका एक नज़रिया है वो मुझे बहुत अपना, बहुत करीबी लग रहा था. और जब मैंने एक चीज़ और जब मैंने देखी कि कहानियों के शीर्षक, मैं उस पर बात करना चाहूँगी कि क्या खूबसूरत शीर्षक हैं. जैसे एक जो मुझे बहुत मज़ा आया, ये है सैंडाई जाने वाले रास्ते पर तुम नहीं थे साथ. अब ये पूरी कहानी है, आपको अंदर जाके पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. आप देखेंगे आपको लगेगा ये थोड़ा हम जाने कि क्या था, कौन था जो साथ नहीं था. तो ये एक इंट्रीगिंग तरीके से जो एंट्री है वो शीर्षक से ही शुरू हो जाता है. 3 अर्जली मोमबत्तियाँ जिसका आपने जिक्र किया, वो भी वैसे ही है कि आप एक उत्सुकता में प्रवेश करते हैं कि कहानी किस संसार में आपको लेके जाएगी. मुझे जो कहानी बहुत अच्छी लगी वो लूमिस, कैटरपिलारी और जापा. कहानियाँ मैंने और भी पढ़ी, मछली सलीब पर टंगी पढ़ी, महसूस, कीड़ा रेशम का, और जितनी भी कहानियाँ मैंने पढ़ी, मैं ये 5-6 कहानियों को पढ़कर मैंने तुरंत एक फेसबुक पोस्ट लिखा जिसमें मैं एक तरह से लैमेंटेशन था कि हम क्यों कमला दत्त जी की कहानियों को
पहले नहीं जानते थे। और जैसा इन्होंने अभी बताया कि जो भी दुनिया है यहाँ छपने छपाने की, वो दुनिया, अब इस पर क्या ही कहा जाए। अफसोस की बात है कि इस तरह की कहानियों को लिखने के बावजूद हम लोग, जो मैं, वंदना जी और मैं, हम दोनों कह रहे हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं और फिर भी हम नहीं जानते हैं, तो ये बिल्कुल हमारा दुर्भाग्य और हमारी कमी है। और कहानियों के बारे में हम जो भी बात करें, मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है कि इन किताबों को, ये किताबें, ये भी मैं बताना चाहूँगी कि कुछ हमारे दोस्तों से मैंने जिक्र किया था, तो ये किताबें उनको मिल नहीं रही हैं। तो अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन किताबों को, इन कहानियों को हम जितना ज़्यादा इनके ऊपर हम बात कर सकें और जितना हम चर्चा में लेके आएँ, क्योंकि कमला जी को अब कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए इतना शानदार लिखने के बाद। अब ये जो कहानियाँ, मैं कहानियों पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। वो इतनी साइंटिफिक टेम्परामेंट की कहानियाँ, मैंने पहली कहानी शुरू की और मुझे लगा कि मैं किसी ऐसे दुनिया में घुस गई हूँ जहाँ पे रिसर्च पेपर्स हैं, वहाँ एकेडमिक सर्कल की जो राजनीति होती है वो है, पूरी ऐसी दुनिया जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। अब वो शायद इसलिए भी है कि औरतें स्टेम फील्ड में बहुत कम, और जब 70s में आप लिख रही थी तब तो और भी कम थी। अमेरिका जाके पढ़ाई करना, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च आपने किया, करने के लिए आप गए, तो वो संख्या भी वैसे ही बहुत कम रही होगी। तो इतने सारे चीज़ों को आपने पाट के आप एक जगह पे पहुंची, और उस जगह के बारे में जब आप लिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि हम जब कई बार लेखन में स्त्री दृष्टि की बात करते हैं, पुरुष दृष्टि और स्त्री दृष्टि की बात करते हैं, और हम बहुत बार वो एक जेंडर बाइनरी में चले जाते हैं कि स्त्रियां ऐसा लिखेंगी और पुरुष ऐसा लिखेंगे, और इस पे बहुत बार बहुत चर्चा और बहस भी होती है। और तब मुझे लगता है कि अब ये किताब उन लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं, उनको ये पकड़ा देनी चाहिए कि आप कृपया इसको पढ़ें। इसमें आप देखें कि ये जो स्त्री है, ये, इसकी एक जर्नी है। वो जर्नी फिज़िकल जर्नी तो है ही है कि इंडिया से वो अमेरिका जाके वहाँ रह रही हैं। दूसरी जर्नी है कि वो एक साइंस की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। और तीसरा मुझे लगता है कि ये सारी जो जर्नी है, जो ऑब्वियस जर्नीज जो हमको दिखाई देती है कि फिज़िकल स्पेस में आप एक इमिग्रेंट हैं, प्रवासी हैं आप, उसके साथ भीतर आपके जो भीतर की जो यात्रा है, वो यात्रा आपको किस तरह से बना रही है और कैसे आपके व्यक्तित्व को शेप कर रही है, वो इन कहानियों में आप धीरे धीरे उसका एक उसको खुलता हुआ आप देखते हैं। और ऑल्दो जो वंदना जी ने बात कही, वो मुझे भी, मैंने भी नोट किया कि वो कहानियाँ फर्स्ट पर्सन में नहीं होती, वो थर्ड पर्सन में नहीं होती, वो हमेशा सेकंड पर्सन में है। वो हमेशा तुमने ये कहा, तुमने ये किया, ऐसे करके कहानी बढ़ती है। और मैं भी इस बात से बहुत इंट्रीग हुई थी कि ये एक नए तरीके से आप कहानी में घुसते हैं। और मुझे लगा पता नहीं इन्होंने कॉन्शियसली किया है या वो सबकॉन्शियसली वो चीज़ आई है कि आप इस कहानी से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर लेते हैं। आप थोड़ा 2 कदम पीछे हट के आप जब कहानी कहते हैं तो उसमें आप अतिशय भावुकता नहीं डालते, आप डिटैच हो जाते हैं। और कहानी को भी डिटैचमेंट से बोल रहे, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि हम भारत में शायद हम लोग उस तरह से, हम ऐसे लोग हैं कि हम तो बहुत भावुक हो जाते हैं। अगर कोई रोने का सीन है तो हम वो रोएंगे, फिर उसको हम अंडरलाइन करेंगे, फिर हाईलाइट करेंगे, फिर सब चीज़ कर देंगे ताकि वो पाठक उसको प्रॉपरली रिसीव करे। तो ये जो बात है कि ना, हम थोड़ा पीछे हट के ये बात कहेंगे और एक इतना सा स्पेस छोड़ेंगे कि जो पाठक उसको पढ़ रहा है वो वहाँ आकर उस स्पेस में आके खड़ा होगा और वो उस कहानी में जो भी घटना घट रही है उसको अपने तरीके से प्रोसेस करेगा। तो ये 2 बातें मुझे बहुत अद्भुत लगी कि एक तो ये जो जिसको हम कहते हैं हेटेरोनॉर्मेटिव नैरेटिव, उससे ये अलग हो गई हैं, और दूसरी बात ये कि एक डिटैचमेंट से वो कहानी हो रही है। और सारी कहानियाँ, मतलब मैं तो देख रही हूँ कि उसमें साइंस तो बहुत है, साइंस के साथ में उसमें एक किसी कहानी में बहुत चिड़ियों का जिक्र है, कहीं पर वो जो एक लड़की है वो जॉर्जिया ओकीफ म्यूजियम में जाती है। मैं जॉर्जिया ओकीफ की पेंटिंग्स बहुत पसंद करती हूँ, तो मैंने तुरंत इसको नोट किया कि अच्छा। फिर कहीं पे वो मिलान कुंदेरा की किताबों की बात करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो स्त्री, जो लेखक है और जो किरदार में जो स्त्री है, वो दोनों स्त्रियाँ कितनी समृद्ध स्त्रियाँ हैं, कितनी बौद्धिक स्त्रियाँ हैं, कितना उनका जो जीवन है वो कितना भरा पूरा कला से और सोच से और साइंस से। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस है तो उसमें जो कोमल चीज़ें हैं वो गायब हो गई हैं,
वो कोमल चीज़ें भी कहीं ना कहीं कहानियों में अपने आप आती रहती हैं, जैसे वो खूंटियाँ हो जिन पे वो चीज़ें टांग रही हों, और उन खूंटियों पे वो सारी कहानी और उसका जो नेपथ्य है वो चीज़ भी धीरे धीरे वो आता रहता है, और उसके जरिए आप थोड़ा सा वो स्त्री किरदार या पुरुष किरदार उसको थोड़ा आप और जानने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम कहानी कहते हैं तो मेरे हिसाब से कहानी एक तो जो कथ्य है उसमें जो नैरेटिव आता है वो है, दूसरे की जो उसमें भीतर की यात्रा है वो भी आनी चाहिए उसी तरीके से, और ये बाहर और भीतर की जो यात्रा होती है उसके बीच जो एक पुल बनता है वो पुल जो इन दोनों को एक सम पे लेके आता है। और तीसरी बात ये कि वो जो किरदार है उस किरदार से आप कितनी मोहब्बत में पड़ते हैं, कितना आप उससे नफरत करते हैं या कितना इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे बहुत किरदार लोग रचते हैं कि आप उससे इरिटेट हो जा रहे हैं, या कोई ऐसी है कोई किरदार स्त्री पात्र या पुरुष पात्र जिसके साथ आप बैठकर बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं ये वाला स्पेस मैं साझा करना चाहती हूँ और मैं बैठ के बात करना चाहती हूँ। तो मुझे जितनी कहानियाँ मैंने पढ़ी वो हर कहानी में मुझे लगा कि मैं उन किरदारों के साथ बैठकर बात करना चाहती हूँ, मैं उनको और जानना चाहती हूँ, और जब मैं उनको जानूंगी तो कहीं ना कहीं जो कमला जी का तिलिस्म है, जो एल्यूसिव राइटर हैं ये, हम उनको भी धीरे धीरे हम जानेंगे इसी तरीके से। तो इन कहानियों में अब ये पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये सारी किताबें, मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, किताबें कहाँ से मिलेंगी मैं ये जुगत सोच रही थी, तो ये किताबें मुझे मिल गई हैं। तो इन किताबों में इनके जो द वे शी राइट्स, जिस तरह से वो उनके वाक्य की संरचना बनती है, जिस तरह से ये शब्द का इस्तेमाल करती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो दुनिया ये दिखा रही हैं वो दुनिया कितनी अलग है। मुझे नहीं लगता कि 70s में या इवन 80s में या अभी भी कोई इस तरह की कहानियाँ लिख रहा है जिसमें इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, इतने साइंटिफिक जार्गन्स हो, और उनको पढ़ने में मेरे जैसा आदमी जो कि इतिहास का स्टूडेंट रहा है, लेकिन मैंने कहीं स्कूल में और शुरुआती कॉलेज में साइंस पढ़ा था, तो मुझे वो बायोनिक आई आप लिखती हैं तो मेरा तुरंत मन करता है कि ठीक है मैं इसको भी ज़रा सा जान लूँ कि ये क्या है, और वो रिसर्च पेपर छप रहा है, उसकी पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये सारी दुनिया आपको लगती है कि हम इतना नहीं जान रहे इस दुनिया को, और शायद किसी ने इस तरह की दुनिया को लिखा भी नहीं है। मुझे तो ऐसे ध्यान नहीं आ रहा कि इस तरह के एकेडमिक रिसर्च सर्कल में कोई इस तरह की कहानियाँ लिख रहा है। और उसके जी एक बात कहना चाहूँगी, कुछ साल पहले मैं आई तो डॉक्टर कुंतल बेग ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य था, नीरू ने अरेंज की मेरी किताब जब अच्छी औरतें आई, तो एक तरफ साइड पे डॉक्टर मेहंदी लता थे, दूसरे में देश कुंतल बेग, ही जस्ट सेड वन लाइन, और मुझे लगा कि तारीफ हुई है इसलिए आपसे शेयर कर दूँ। कहने लगे कि कमला ने हिंदी कहानी को नई दशा दे दी है और किसी हिंदी वाले ने देखा भी नहीं। एंड आई थॉट कि इट वाज दैट वाज वेरी पावरफुल। एक क्योंकि मेरे पास स्पाइक है, वन पर्सन दैट आई वांट टू रियली रिकॉग्नाइज इज चंद्रकांता जी। जब मैं आ रही थी बहुत सालों बाद, शी वाज वन पर्सन जो प्यार से मिली और उनका प्लेटफॉर्म था। शी इन्वाइटेड मी टू रीड एंड आई मेट विशाल बिकॉज ऑफ चंद्रकांता। सो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल। आप शुरू कर दें। मैंने जो नहीं, आपने ये चीज़ बताई, ये बिल्कुल सही बात है कि आप जिस जगह पे जाके जो आप कहानियाँ लिख रही हैं वो दुनिया बहुत फ़र्क है। और मैंने बहुत प्रवासी लेखक बहुत हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं कई लोगों के नाम मुझे अभी याद आ रहे हैं, उषा प्रियमवदा जी हैं, सुषम बेदी हैं, उनको पढ़ते हुए स्टिल रीड। हाँ, नहीं तो अब ये सब एक दुनिया जो हम जानना चाहते हैं, हम भारत में बैठे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका में जीवन कैसा होता है, जब लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं वो किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, उनकी दुनिया क्या होती है, उनके जो फिज़िकल स्पेस अलग हो जाता है, जो वो तो है ही है, उससे ज़्यादा हम इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि उनके मन की दुनिया में क्या क्या बदलाव आता है। और जैसे वो जो बहुत सी कहानियों में जो स्त्री किरदार है वो अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे ये लगता है कि ये सारी कहानियों में अमेरिका और भारत के बीच का जो पुल है वो भी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि जब हम अमेरिका वो किरदार चले गए हैं तो उनका भारत से कोई कनेक्शन टूट नहीं रहा है। ये एक तरह से पूरी दुनिया को अपने साथ लेके चलने की बात है, और ये बहुत बड़ी बात है। शायद इनके भीतर की कुछ चीज़ रही होगी कि कहानियाँ इस तरह से इस बुनावट में आई हैं
कि हमको ये नहीं लगता है कि कोई अलग से कोई एलियन वर्ल्ड की बात वो लिख रही हैं, वो हमारी दुनिया की ही बात लिख रही हैं। भले उसका बैकग्राउंड है वो अमेरिका के किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस का है या किसी और दुनिया का है, लेकिन बातें मन का जो संसार है वो बहुत बहुत भारतीय संसार है। और जो स्त्री है वो वहाँ जाकर बहुत अचीव कर रही है, लेकिन साथ साथ वो बहुत लेड बैक औरत है। वो ऐसा नहीं कि बहुत एग्रेशन में चली गई है, वो कोई सुपर अचीवर बन गई है, लेकिन उसके जो कोमल भावनाएं हैं वो हर कहानी में जितनी मैंने पढ़ी उसमें वो हमेशा ये बात रहती है कि वो थोड़ा सा पीछे हट के अपने आप को इवैल्यूएट करती रहती है, वो अपने आप को असेस करती रहती है। और इन सारी मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको मैं चाहती कि मैं कमला जी से बैठ के बहुत लंबी बातचीत करूं और इनकी कहानियों को, उसके पीछे के जो तार हैं उनको हम खोल पाते, जो बहुत अदृश्य दुनिया है जिसको इन्होंने कुछ तो लिखा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि छूटी हुई हैं। उन छूटी हुई अदृश्य चीज़ों को जानने की हमारी बहुत इच्छा है और मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि और खूब लिखें और जो भी एक नई दिशा जो इन्होंने कहानियों को दी है, जो 70 के दशक में लिख रही थी या आज लिख रही हैं, वो सब कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ हम अभी यहाँ पर बहुत, मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं इस टोन या इस सुर की कहानियों को मैंने पढ़ा है। और हमको इन कहानियों को बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो हम हिंदी में लिख रहे हैं उसमें एक नए तरह का रंग लेके आ रही हैं। तो ये हमारा कहीं से फ़र्ज़ बनता है कि अब जब ये चीज़ें हमारे सामने हैं, ये और किस तरीके से हम पाठकों तक डिसेमिनेट कर पाएँ, इसके बारे में हम कितनी बात कर पाएँ। और जो कमला जी का ड्यू है वो तो डेफिनेटली उनको मिलना ही चाहिए। तो आज इस बात से बहुत खुशी है कि ये मौका मुझे मिला कि मैं बात कर सकूं, इनकी कहानियों को पढ़ सकूं। मैं बहुत आभारी हूं विशाल, और कमला जी की बहुत आभारी हूं। सारे लोग जो आप लोग आए हैं, बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब सुन रहे हैं और कमला जी को सुनना हम तो चाहते थे कि थोड़ा सा और इनकी बातें और सुनते। I feel lucky कि आप लोग सुन रहे हैं। Truly, I'm grateful to you. सच कह रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्यक्षा जी, महत्वपूर्ण परिचर्चा की अध्यक्षता स्वीकार करने के लिए। और कस्तूरी हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि जो नई धुन है रचनाओं की वहाँ तक हम पहुँचे। नए रचनाकारों को, मतलब नया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम सब इतने नए हैं, कस्तूरी की जो टीम है वो इतनी युवा है कि हमारे लिए सब कुछ नया है और हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कमला दत्त जी की कहानियों तक हम पहुँचे, उन्हें पढ़ा और उन कहानियों के माध्यम से हम समृद्ध हुए। इसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, लेकिन आप सभी के धन्यवाद के लिए, पैनल के धन्यवाद के लिए मैं कस्तूरी संस्था की अध्यक्ष दिव्या जोशी से निवेदन करूंगा कि आप औपचारिक धन्यवाद दें। नमस्कार। आज कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति के लिए आप सबका पहले तो स्वागत, क्योंकि आज कार्यक्रम में इतना मुझे लगता है कि आपकी ये कहानियों का जादू है मैम कि आज हम पहली बार स्वागत वक्तव्य देना भूल गए और हमने सीधा कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। तो ये तभी होता है जब श्रोता और वक्ता दोनों ही बड़े, क्या कहेंगे कि बिल्कुल वेट नहीं करना चाहते मैम कि आज का कार्यक्रम शुरू हो। तो मुझे लगा कि बीच में स्वागत वक्तव्य देकर मुझे भी इस कार्यक्रम की लय को, जिस टोन की बात हम कर रहे हैं, उसे बाधित नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो आप सभी यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत आभार। स्पेशली मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रत्यक्षा जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप आए और आपने हमारे इस कस्तूरी के आंगन को समृद्ध किया। साथ ही मैं ऋतु जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एवं आभार ज्ञापन करती हूँ कि आप आए और आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही वंदना मैम ने इतना सुंदर वक्तव्य दिया। इन 3 कहानियों को जिन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा, मुझे लगता है कि आपके वक्तव्य के बाद वो इस कहानी से बिल्कुल परिचित हो गए होंगे। और जब आप किताब देखेंगे या खोलेंगे तो सबसे पहले शायद आपकी बताई 3 कहानियों पे जरूर जिक्र करेंगे। और प्रत्यक्षा जी ने जिस बात को कहा कि यस, अभी वो ड्यू जो बाकी है वो कमला जी को अवश्य मिलना चाहिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज के अध्यक्ष वक्तव्य की मुझे बात लगी कि जिस रचनाकार की जो रचना धर्मिता है, यदि हम उसको श्रेय नहीं दें या हम उसके बारे में बात नहीं करें तो जो आगामी रचनाकार है वो कहीं ना कहीं मायूस हो जाएंगे कि जब इतनी समृद्ध कविता, कहानियाँ, इतने बड़े बड़े कहानीकारों को अगर हम मंच नहीं दे पा रहे हैं तो फिर जो अभी शुरुआत कर रहे हैं तो वो अपने आप को कहीं पाएंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ी मुझे लगता है पहल है आने वाले कहानीकारों के लिए भी। तो
प्रत्यक्षा जी ने बहुत सुंदर बात की और जो कमला जी को हम सुन रहे थे तो हम सच में चाह रहे थे कि आप बोलते रहें और हम सुने, क्योंकि जब कहानियां हम पढ़ रहे होते हैं तो हम अमूमन कहानीकारों से बात नहीं कर पाते, हम जान नहीं पाते कि इस कहानी के पीछे का मंतव्य क्या होगा या कहानी के पीछे का उद्देश्य क्या होगा, या ऐसी कौन सी बात थी जिसने कहानीकार को इसे कहानी बनाने में बिल्कुल ही प्रेरित कर दिया। तो हम फिर आपसे मैं आग्रह करती हूँ कस्तूरी मंच के अध्यक्ष होने के नाते कि आप जब जब भारत में आए या जब जब आपको समय मिले तो आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े और निरंतर हम आपकी और कहानियों पर भी ऐसी चर्चाएं करें, तो ये हमारा सौभाग्य रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। और आज बहुत ही विशेष दिन है, मैं उसके लिए भी आप सबको बधाई दे देती हूँ कि आज हनुमान जी का प्रागट्य उत्सव है और इससे सुंदर दिन क्या होगा मैम कि वो यहाँ से लंका गए थे हाथ रखने के लिए और आप सीधा अमेरिका से हमारे पास पहुंची हैं अपनी ही बात को रखने के लिए। और हम आपको वैसे ही बता देते हैं, जानमन जी ने कहा था ना कि आप अपनी शक्तियां भूल गए हैं तो कार्य कीजिए, तो हम भी कहेंगे कि अब आप ये कार्य रुकना नहीं चाहिए मैम, इतने सुंदर आप जो रचना कर रहे हैं थोड़ा बहुत लिखिए। बिल्कुल हम सब पढ़ेंगे और हम आगे भी पढ़ाएंगे लोगों को जो लोग इस तक नहीं पहुंच पा रहे। कस्तूरी का उद्देश्य ही यही है। और जिस तरह आज बात महिलाओं पे हो रही है तो आप देखिए कि हमारी सनातन संस्कृति पे जिसका ये मंच है, कला साहित्य संस्कृति, तो वहां पर महिलाओं की बात हमेशा ही होती आई है। आज हनुमान जी के संदर्भ में बात छिड़ी है, तो जब हनुमान जी ने लंका जला दी तो माता सीता ने उनसे पूछा कि तुमने लंका जला दी है ना, तो तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? तो हनुमान जी ने बोला कि ये किसी साधारण अग्नि से तो मैं नहीं जली पूरी लंका, ये तो पावक से जली है। तो सीता जी कहती हैं कि कैसी बात कर रहे हो, पावक और अग्नि में क्या डिफरेंस है ना? हम सब यहाँ हिंदी के लोग बैठे हैं तो मतलब पर्यायवाची शब्द ही तो है कि पावक और हिंदी के बीच का अंतर क्या है। तो हनुमान जी कहते हैं मैया आप भूल रही हैं कि जब राम जी ने आपको पावक में निवास, तुम पावक वहां करो निवास, आपको अग्नि में निवास नहीं दिया था, आपको पावक में निवास दिया था, तो इसीलिए इस अग्नि ने जो है मेरी पूंछ नहीं जलाई। मैंने बोला कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा हनुमान तुम मुझे क्यों उलझा रहे हो? तो उन्होंने बोला मैया पहली बात तो ये है कि क्या सोना आग से जल सकता है क्या? नहीं जल सकता। तो यानी ये विशेष अग्नि है जो राम जी और राम काज के बीच में जो आते हैं ना, तो उसको पावक जो है जला देता है। ये तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई में लिखा भी है। तो सीता जी ने कहा चलो मान लिया कि तुम्हारी पूंछ नहीं जली, लंका जल गई, पर मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? चलो पावक मान लिया कि राम जी की शक्ति थी तो तुम्हारी पूंछ भी जल सकती थी। तो हनुमान जी उसमें कहते हैं कि आपने ठीक कहा, पर जिस पावक में लंका को जलाने की शक्ति थी उसी पावक में उससे मुझे बचाने की शक्ति बैठी हुई थी। सीता जी ने कहा कैसे? उन्होंने बोला माता मैंने अभी तो कहा कि तुम पावक वहां करो निवासा, क्योंकि उसी अग्नि में आप भी तो निवास कर रहे थे। अगर राम जी निवास कर रहे थे जलाने के लिए तो मुझे बचाने के लिए आप भी निवास कर रही थी, इसीलिए सारा श्रेय आपको जाता है। तो जो स्त्री की बात हम यहाँ कर रहे थे कि स्त्री सशक्तिकरण या हम स्त्री को किस तरह उसका वो क्या कहेंगे उसको उसकी पूरी तरीके से हम ख्याति नहीं दे पाते, तो आज हनुमान जी को याद करके मुझे लगता है हनुमान जी ने तो ये बहुत साल पहले लंका में सीता जी के साथ उसका सारा श्रेय उन्होंने क्या कहा सीता जी को दे दिया। तो ये बहुत सौभाग्यशाली दिन था कि आज के दिन ही हमें इस कार्यक्रम को रखने का अवसर मिला और आप सबसे मुखातिब होने का अवसर मिला। आप सभी पुनः आमंत्रित हैं, जब जब कार्यक्रम हो आपके पास समय हो तो आप कस्तूरी से जुड़िए और हमारे आंगन को और समृद्ध कीजिए। मैं अपने सभी टीम मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो यहाँ आए और उन्होंने कार्यक्रम को संभाला, उसे पूरी तरह से ठीक ठाक तरीके से हम कर पाए, इसमें उनका भी बहुत बड़ा श्रेय है। और जो लिसनर्स यहाँ पर आए हैं, मैम ने बताया कि उनके परिचित और काफ़ी घर से भी बहुत लोग आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि अब तो हम सब आपका घर है ना, अब आप जब इंडिया आए तो हम सब आपके घर वाले ही हैं। और अब हृदय में जो भी बात है, जो भी नई रचनाएं या फिर ऐसे जो भी रचनाकार और भी हैं, हम प्रयास करेंगे और हम आप सबसे भी ये निवेदन करते हैं कि आप हम तक उन्हें पहुंचाइए, ताकि हम फिर यहाँ से उसको जितना आगे फ्लरिश कर पाए हम पूरी सहायता करेंगे। अब थैंक यू सो मच आज के कार्यक्रम के लिए। आप सभी चाय के लिए बाहर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।